The first thing is the biggest mistake I made, as I told before, know what you are doing. Being an art student, like कोई ऐसा मुंह पे आके नहीं बोलता, but back of their minds या gossip करते हैं, even relatives, society people, everybody, वो back of the mind उनके रहता ही है कि आर्ट स्टूडेंट है क्योंकि इसको कुछ आता नहीं होगा इसलिए इसने आर्ट्स लिया है. You have to do it right now. मेरे first round of exams that I gave last year, यही गलती किया मैंने. एग्जाम्स भरे, प्री में गए एग्जाम से जब आप बाहर आ रहे हो तो आपको पता होता है एग्जाम क्रैक होगा या नहीं. बट मम्मी पापा पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, हो गया, कैसा हुआ, क्या किया, कैसा गया. पापा हो जाएगा, अंदर से पता ही नहीं होगा. अंदर से तो लग रहा है कि बहुत बुरा गया, क्या होगा, कैसे फेस करके पेरेंट्स को, रिजल्ट कैसे आएगा, क्या बोलेंगे. आई डिडंट हैव अ सेट गोल. आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, सो आई ऑलवेज थिंक कि आई हैव इनफ टाइम, बट आई नेवर हैड इनफ टाइम. कल कभी नहीं आता. देयर इज नो टुमारो. Hello everyone, welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Ranjita, your host for today. Today we have with us our special guest Ishita, who has cracked her SBI PO exams. So let us hear from her on her journey of managing and cracking this exam. Hi Ishita, welcome to the episode, and how do you feel to be here, and a quick introduction about yourself. Hi, thank you for having me. And I'm Ishita Gautam. I'm 23. I'm from Kanpur, Uttar Pradesh, and I did my graduation in arts in 2021 in Kanpur itself, and my post-grad in arts as well in sociology in Kanpur itself in 2023-2024. So I'm an aspirant. I was an aspirant actually, and now being selected in SBI, it just feels like a dream come true. I've been in a dilemma ever since I was, I think, 18 or 19 years old, and I thought that being here would be easy. It wasn't. It was a journey, and it took a long while for me to come here, and I just wanted to share that story. That's it. Okay, you've already given your educational background, right? That you are from arts in Kanpur. Which college exactly you're from? I did my BA in Jagran College of Art, Science and Commerce. Okay. It was very near to my home. It was it was a good college, and I have my basic arts education there. And then I did my masters. I did it in PPN College. It's a very old college, and it is a prestigious college. My grandfather also did his graduation there. My father did his graduation there, so I was just following the footsteps. I was following their legacy, and it was that. Okay, that's great to hear. So, do you have any work experience, past work experience? No, I was unemployed. I was not really unemployed. I did my masters, and then I was posted here. Okay. Do you have given any other attempts except for SBI PO? Yeah, before? I've been trying for banking exams since last year, like 2022 and 2023. The exams I gave were IBPS clerk. I gave IBPS PO exam, which I did not clear. I didn't even clear the pre in my first go, and in the second attempt, I cleared all the pre's. Whichever pre exams I gave, I cleared all of them, and I got selected in SBI PO. I did not get selected in IBPS PO, but IBPS clerk I got selected in, and SBI clerk also. Okay. If may I ask, how many attempts have you given for this particular exam? For this exam I gave, it was my first attempt. Last year I could not fill the form, but this year I filled the form, and I did my due diligence, and I'm here. It was the first attempt for SBI clerk and SBI PO as well. Okay, it's your first attempt and you've cracked it. Congratulations on that. We should Thank feel you. really Thank good, in the Yeah. first attempt you've cleared this. So, if I may ask, I was very curious because you come from arts background and now you've cracked a banking segment exam. So, what do you have to say about that, and why did you choose? We're very curious. So it's not that I wanted to be an art student. I just wanted time to prepare for these exams, because when you're in a professional institute, or when you are studying engineering or other difficult courses, you don't really get the time to study until you've graduated. So my ultimate goal was to get a government job, and I was working towards it
after my 12th, and I had a liking towards history and sociology, so particularly those subjects. So I wanted to pursue arts. My father also motivated me and guided me to take arts, because he thought that if you really want to be committed to something, then do it wholeheartedly. Don't be halfway there. You can't have your feet in two boats, that kind of thing. So afterwards, after I did my graduation, due to COVID, I wasn't really able to attend any kind of coaching. That's when I was introduced to YouTube and the opportunities of education that we have there. I think that it is very underrated. People don't understand the kind of scope you have when you can just sit at home and study. Right. People always say that you will have to study for 6 months, 10 months. You can take 5 years. But if you don't have the right kind of guidance, it's just waste of time. Right. Yeah. That's great to hear. Now, I'm very much, you mentioned about your father, and you also come from an educational background where your grandfather and father pursued their education as well. So what's your biggest motivation in order to pursue this particular, career that you've chosen and to crack this particular exam as BIPO? So my grandfather, I really like to mention him. He is a retired RBI assistant manager. So the motivation to become a banker came from him. It was always like the kind of life he had. He had a very fulfilling life. He had, like whenever he was working, he was very happy. And even after his retirement, he's, I think, 76, 77 now. So he has always laid an example where you'll look at him and you'll see like he is not 76. He doesn't look 76. He's had a long life, but he had his struggles. He came out of that. He worked in telephones, and then he was in RBI. So that was my motivation. I just wanted to be like him. I look like him. I wanted to be like him, and I wanted to be a banker, because bankers, they don't let you know the kind of life they've led, because he never let me know like the difficulties he's had, but he has helped so many people. He's touched so many lives. He's socially active. He works for causes as well. He has helped our society in many ways. And for my father, he is also a government employee. He is an income tax officer. So it was not much of an option in the sense that I didn't want to lead any other life that I've known until now. Nice. So your inspiration lies in your roots, I must say. Yeah, definitely. Okay. So now that we've understood or known your journey, right? So I would want to know more of your perspective, your challenges, and your take on the prelims, right? So talking about English, which consists of para jumbles or vocabulary, and normally people think it's a perspective that English though is easy. Yeah. So what is your understanding on that, and how did you approach that particular part of this? So prelims were not easy. I won't say they're easy. They're easy once you know your stuff, once you know what you have to do and what you don't have to do, then it's easy. But for the first year when I gave my exams, the last year, 2022-2023 exams that I gave, I was not well prepared for it. English, I must like to add one thing, that English is not difficult. It's just that once you know the basics, there's not much details that you can go into. You just have to practice more and more. And for English, my approach was that I had a good schooling. I was in an English medium school, so I didn't have any problem in English. But yeah, the questions they ask, the type of questions they ask, the comprehension, the para jumble, the fillers and everything, those kind of questions you can only attempt when you have a lot of practice in it. People make the mistake of ignoring English. If they are from English background, even if they are not from English background, English schooling they've not done, what they do is they put it secondary. Like they'll put their focus on quants and reasoning, even GA, but they will not study English, which is the one thing that I found was lacking with the peers I had and with the people I was studying with. So they always told me, "Nahin, English we'll do in the last month or so." Don't do that. That is the biggest mistake you can make, is that when you think that you can do it, you probably won't. You'll have to do it now. The right time is now. You don't have to be like, okay, prelim se pehle kar lenge, koi problem nahi hai. That is not a nice
way to look at things. So I made sure that whenever I was preparing for prelims, then the thing is, go for English and GA as well. Focus on them. You don't have to study them for 4 hours a day. Just give them half an hour, 1 hour. But even the prelims, then you should study English. Okay. And what about the reasoning? Because that will again include logical reasoning, verbal reasoning. Point of view सिर्फ इतना था with reasoning. If you understand it, समझ आ रहा है तो आ रहा है, otherwise कुछ नहीं कर सकते. क्या कर सकते हैं? Like give time. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे साथ के लोग ऐसे हैं जिनको रीजनिंग नहीं समझ आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स पे फोकस किया सिर्फ कि कॉन्स हेल्प कर देगा पास होने में. ऐसा नहीं होगा. रीजनिंग इज द पिलर दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो आपको सॉलिड मार्क्स देगा. कॉन्स के साथ आप बेट कर सकते हो अगर आप स्ट्रॉन्ग हो मैथ्स में. लाइक आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स इन माई स्कूल. लाइक आई नो कि 12th तक का आता है, उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं आता, लेकिन ये है कि अगर आपने एक बार कॉन्ट्स को जितना टाइम दिया, लेकिन रीजनिंग में क्या है, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है. रीजनिंग में यू हैव टू री थिंक द थिंग्स. अगर आपने एक बार पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो आप उसमें फंस जाओगे. आपका मन नहीं करेगा उसको रखने का अगर आप यूज टू हो गए तो. अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फिर तो आपको डिफिकल्ट लगेगा. फिर प्री तो ईजी है. रीजनिंग इज़ वेरी ईजी इन प्री, बट इन मेंस जब आप पजल्स देखोगे, इवन लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे लगेगा कि हाँ पढ़ के भाई 4 ऑप्शन है, कर लूँगा. नहीं होगा. मैंने वो चीज़ फेस की when I gave my IBPS PO mains. So this year when I gave my IBPS PO mains, reasoning was very difficult. लग रहा था कि आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा था वहाँ पे. You can't predict कि क्या होगा क्या नहीं होगा. Right. That was my approach. So you already told me that you didn't like maths, right? So now that Quant had most of maths, which all of us hate, including me, I always hated maths. So then what was your approach, that something that you don't like, but now that you have it, you have to crack it? Maths was my frenemy. We say frenemy. It was my friend and my enemy at the same time. I always thought of it कि maths के questions, मतलब हाँ, मेरा ऐसा था कि अगर मैंने attempt किया तो मैं तभी attempt करूँगी जब मुझे पता है कि मैं सही कर लूँगी. I never take risks. In exams मेरा एक ही logic था, number of attempts does not matter. It does not matter. The questions, how many questions you are doing right, that matters. तो कितने questions सही करने हैं. Last year के previous year questions उठाओ, cut off देखो, do your study. Exam से पहले ये मत करो कि I'll wing it. Do your research, give time, be patient. जितना ज़्यादा आप सब्र रखोगे उतना ज़्यादा you'll get good at it. कॉन्ट्स में एक स्ट्रैटेजी मुझे बहुत पसंद आई थी मेरी, जो मैंने एक्चुअली किसी और से इंस्पायर होकर ली थी. देयर वाज दिस टीचर, सो ही टोल्ड मी कि कॉन्ट्स के साथ एक काम करो, पसंद नहीं है, एक गोल बना लो, 10 क्वेश्चंस कर लो. 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन 10 क्वेश्चंस को अगले दिन फिर से कर लो. नए क्वेश्चंस मत उठाओ, उन 10 क्वेश्चंस को फिर से कर लो. फिर से उसमें से 5 नहीं आ रहे हैं तो वो 5 फिर से कर लो. When you know कि हाँ ये 10 क्वेश्चन 100% सही हो गए हैं, फिर नेक्स्ट तरीके के 10 उठा लो. जैसे मुझे DI से बहुत डर लगता था. डेटा इंटरप्रिटेशन वाज वन थिंग जो मुझे लगता था कि भाई अगर मतलब मैंने स्टार्टिंग में अगर टेबल बनाना है अगर नहीं सही किया तो फिर तो गया, पूरा क्वेश्चन गया. क्योंकि अगर आपने 4 मिनट का टाइम दे दिया, 3 मिनट का टाइम दे दिया, इवन प्री पीपल डू दैट. जिनको DI में डिफिकल्टी होती है वो लोग 2 मिनट 3 मिनट दे देते हैं पहले, मतलब कि उसको क्रैक करने के लिए उसका टेबल बनाएंगे कि चलो बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे. उसके बाद क्या हुआ, टेबल बनाने में टाइम दे दिया, अब क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है. उन्होंने जानबूझ के ऐसे फ्रेम किया है क्वेश्चन पेपर कि आपको लगेगा कि आप ईजिया कर लोगे, लेकिन जहाँ आपने ABCDE क्वेश्चन देखे, भाई इतने पैराग्राफ जितने लंबे क्वेश्चन है उसमें कैसे करोगे आप. तो DI के लिए मेरा अप्रोच यही था कि नो योर थिंग, कि आपको कैसे प्लान आउट करना है कि एग्जाम से. और द रॉन्ग अप्रोच इज फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करना. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी देन स्टडी, मेक अ गोल कि मुझे इस साल एग्जाम क्रैक करना है. दैट इज़ व्हाट आई डिड फॉर 2023-2024. लास्ट ईयर आई मेड अ मिस्टेक. आई डिडंट यूटिलाइज दैट टाइम विच आई शुड हैव. तो आई रिग्रेटेड इट सो मच
And then for the last, I think I started my preparation seriously in March or April, and then I gave it my all. शुरू में मैंने 8 hours 10 hours स्टडी करना स्टार्ट किया. देन मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे, मेरे बेसिक्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग थे. इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगा कि मुझे क्वांट्स नहीं लेनी चाहिए या मुझे मैथ साइंस नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने आर्ट्स ले लिया. मैंने सोचा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मुझे जाना है तो उतने के लिए 12th तक की मैथ्स इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट. सो आई डिड दैट. एंड आफ्टर उसके बाद एक बार जब चालू किया तो फिर रुको नहीं. डोंट स्टॉप, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू. देन टूवर्ड्स द एंड जब प्री क्लोज आ गया तो आई ओनली फोकस्ड ऑन प्री. फॉर द लास्ट मंथ द ओनली फोकस वॉज प्री, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है जब आप मेंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो. वहाँ पे क्या है ना कि आपको अगर 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम 45 मिनट्स 1 hour जो भी मिल रहा है आपको, वो आपको ये लगेगा कि हाँ यार बहुत टाइम है. वहाँ पे गोल ये नहीं होता आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ पे गोल ये है कि आपको सही करने हैं क्वेश्चंस. 50% भी क्वेश्चंस आप करके आ रहे हो एंड पीपल आर गेटिंग देयर ओन होम स्टेट होम सर्कल. क्यों? क्योंकि सही किए हैं उन्होंने. अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे आप फंस जाओगे. तो प्री के लिए द ओनली गोल इज़ कि जब प्री क्लोज आ जाए ओनली फोकस ऑन प्री. मेंस के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो 2 घंटा 4 घंटा, बट 1-2 घंटे आप मॉक दो. मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट गिविंग मॉक एग्जाम्स, दैट इज़ द मिस्टेक, द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड रिगार्डिंग टू प्री. क्योंकि मेरा क्वांट्स डिफ़िकल्ट लगता था मुझे, मेरे को नहीं आता था इतना ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है कर लेंगे एंड टाइम पे, लेकिन नहीं होगा तो मॉक्स दो. पिछले साल मैंने नहीं दिए थे, इस साल मैंने मॉक्स दिए, मुझे खुद डिफरेंस फील हो रहा था. व्हेन यू गिव मॉक्स, स्टार्टिंग में आई वुड बेयरली डू 30 क्वेश्चंस, बेयरली कुड डू 40 क्वेश्चंस. सही थे लेकिन कॉन्सेप्ट्स वर क्लियर, सही हो रहे हैं, ठीक है, कीप दैट गोइंग. उसके बाद मैंने शुरू किया करते गए अप्रैल में जून में फिर धीरे धीरे RRBs के नोटिफिकेशंस जब आना स्टार्ट हो जाते हैं जून जुलाई, देन यू गेट टू नो कि अब क्या करना है. अब फोकस पढ़ाई कर रही है. अब आपका एग्जाम है RRB क्लर्क का, RRB PO का, तो आप उसको सॉल्व कर, मतलब उसको पहले टारगेट करो. उसके बाद आप कोशिश करो कि देखिए कोर्स सेम रहता है, पढ़ाई सेम रहती है, बट फोकस थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़े से अलग होते हैं. SBI का थोड़ा अलग होगा, IBPS का अलग होगा, RRB का तो वो आप फोकस करो. उसके अलावा क्वांट्स में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी मैं तो यही कहूँगी कि DI से डरो मत. DI विल मेक यू स्कोर, इट विल मेक योर मार्क्स बूस्ट. अगर आपने एक बार DI सॉल्व कर लिया तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को सिर्फ कोरिलेट करके, कभी कभी तो सीरियसली मेंस लेवल क्वेश्चंस भी मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आपने पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपको करने ही नहीं पड़ेंगे, वो आधा सॉल्व हो चुका है, बस 1-2 एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है, हो गया सॉल्व. तो दैट वाज माय अप्रोच विद क्वांट्स. That's great. I'm sure for all our aspirants, you have given enough insights, especially the ones who hate maths. So already you've covered, your challenges and what you failed in before, but you later practiced, right? But what, according to you, are the top few things that we need to keep in our mind, or top few points that we need to keep in our mind, according to you, in order to clear the exam? The first thing is the biggest mistake I made, as I told before. Know what you are doing. Being an art student, like कोई ऐसा मुंह पे आके नहीं बोलता, but back of their minds या gossip करते हैं, even relatives, society, people, everybody, वो back of the mind उनके रहता ही है कि आर्ट स्टूडेंट है क्योंकि इसको कुछ आता नहीं होगा इसलिए इसने आर्ट्स लिया है. But my parents knew how capable I am, and I did not pursue any other course, any other subject, because I felt like I had to give more time to my preparation for government exams. मेरा यही गोल था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स ही देने हैं, एंड मेरी लाइकिंग थोड़ी सी बैंकिंग की तरफ ज़्यादा थी, एक्सेप्ट फॉर SSC एंड अदर स्टफ, बिकॉज मेरे दादाजी थे तो मुझे मोटिवेशन तो घर से ही मिल रहा था. एज यू सेड, मेरी वैल्यूज़ और रूट्स में था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लाइफ तो मैं जी रही हूँ ऑलरेडी, तो इट वुड बी ईजियर टू ब्लेंड इन. तो ये था. और डिफ़िकल्टीज़ में आई डिडंट हैव अ सेट गोल. आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, सो आई ऑलवेज थिंक कि आई हैव इनफ टाइम, बट आई नेवर हैड इनफ टाइम. कल कभी नहीं आता. देयर इज़ नो टुमारो, यू हैव टू डू इट राइट नाउ. मेरे फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम्स दैट आई गिव लास्ट ईयर, यही गलती किया मैंने. एग्जाम्स भरे, प्री में गए एग्जाम से जब आप बाहर आ रहे हो तो आपको पता होता है एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा,
बट मम्मी पापा पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, हो गया, कैसा हुआ, क्या क्या किया, कैसा गया, पापा हो जाएगा। अंदर से पता ही नहीं होगा अंदर से तो लग रहा है कि बहुत बुरा गया, अब क्या होगा, कैसे फेस करेंगे पेरेंट्स को, रिजल्ट कैसे आएगा, क्या बोलेंगे। तो ये था कि नई आर्ट स्टूडेंट हो तो ज़्यादा प्रूफ की, आई हैड अ लॉट टू प्रूव, बिकॉज मैंने एक जो स्टेप बैक लिया तो मुझे ऐसा लगता, ऑल्दो आई डोंट कंसिडर अ स्टेप बैक, बट हाँ, पीपल थिंक कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप नहीं कर सकते हो, जस्ट नो वॉट यू आर डूइंग। एक बार आपने मन बना लिया। एंड द सेकेंड मिस्टेक आई मेड वॉज डिडंट डू मॉक्स। आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ मॉक्स। आई वॉज, जैसे ही वो चालू होता था ना टाइमर, प्रेशर चालू हो जाता था। अब दिक्कत ये थी कि मैं बेसिक से कर रही थी सारे, मुझे अर्थमेटिक आता है, सपोज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो मैं वही जो 8th क्लास में सिखाया गया मैं उसी मेथड से कर रही हूँ। कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन 1 hour यू हैव टू डू इंग्लिश, यू हैव टू डू, और फिर टाइमर होता है, सेक्शनल है, वो अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो दैट मिस्टेक आई मेड। डू मॉक्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा मॉक्स आप दोगे, अभी मैं बोलूँगी तो नहीं समझ आएगा किसी को, लेकिन जब आप डिफरेंस खुद देखोगे ना, 1 महीना आप मॉक्स दोगे, इतना रोगे, मतलब अच्छे ही नहीं आ रहे, मार्क्स ही नहीं स्कोर हो रहे, स्ट्रेस हो रहा है, बाल सफ़ेद हो गए, मार्क्स में आ ही नहीं रहे एग्जाम। वही है ग्रोथ। जब मार्क्स नहीं आएंगे तभी मार्क्स आएंगे। जब आप जानते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो तभी तो आप उसको सही कर सकते हो। मार्क्स नहीं दोगे, पता ही नहीं चलेगा। जो मुझे पसंद है रीजनिंग में पजल्स करना। फ्लोर बेस्ड पजल्स उठा लिए, 100 क्वेश्चंस कर डाले, अरे मुझे तो सब आता है, रीजनिंग में नहीं आता, कर ही नहीं पाओगे आप। मिसलेनियस क्वेश्चंस कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, किसी लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं पजल्स प्रिपेयर कर लो एंड यू विल बी डन। नो, यू हैव टू नो। भले एक क्वेश्चन आ रहा हो कि जिसमें मिसलेनियस में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपको मतलब बताना है कि मतलब कोई रिलेशन नहीं हो सकता है उसका सिलेबस से, लेकिन अगर एक क्वेश्चन मिसलेनियस में आ रहा है, अगर आपने सही अटेम्प्ट किया, यू स्कोर 1। मिसलेनियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पजल्स के साथ क्या है, पजल्स के साथ प्रैक्टिस, जैसे कॉन्ट्स में है लॉजिकल, आई मींट कॉन्ट्स में अगर आप DI कर रहे हो, प्रैक्टिस चाहिए। सेम गोज विद पजल्स। सो दैट वाज माय 2 ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक्स वर। एंड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड। वो तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी लोग हैं, जो लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट एंड मैनेज सेम थिंग। बट आई मेड द मिस्टेक कि मैं सोचती थी दिन में 4 घंटे पढ़ने से हो जाएगा। उनके लिए है दिन में 4 घंटे जो पहले 3 महीने दिन में 12 घंटे पढ़ चुके हैं, उनके लिए प्री में 4 घंटे पढ़ना चलेगा। या कॉन्ट्स के लिए सिर्फ आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो 2 घंटे दे दिए, 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए, बट प्री के लिए तो मॉक्स देना ज़रूरी है। Right. And I really liked your statement. You being a procrastinator, you telling yourself कि कल कभी नहीं आता. That was a good motivation in order to, you understood that what you lacked in, but you always, reminded yourself that the tomorrow is not going to come. So did you have any timetable or any set of targets in order to achieve certain, small milestones or larger milestones? I would say time management is a concept. It's not a hard and fast rule. You don't have to wake up at 6 in the morning और फिर current affairs करो, newspaper पढ़ो. Like I shouldn't say this, but I never really went through any newspapers until I had my interviews. Because मुझे लगता था कि जितना कंटेंट मुझे YouTube से मिल जाता था in a just 1 hour में, मुझे जितना मिल रहा है, मैं उतना न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं दे सकती. एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है फॉर योर इंटरव्यू, ताकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो कि आप कैसे, जैसे कॉम्प्रहेंशन है तो आप कैसे उसको पढ़ोगे, कैसे आप दिमाग लगाओगे अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. उसके अलावा न्यूज़पेपर से ज़्यादा मुझे हेल्प किया यूट्यूब पे जब मैं वीडियोस देख रही थी करंट अफेयर्स की, तो एक वो चीज़ थी. एंड टाइम मैनेजमेंट में मेरा ऐसा मानना है कि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो टाइम मैनेजमेंट में लोग नहीं ऐड करते. उनका है 4 घंटे कॉन्ट्स पढ़ना है, 4 घंटे रीजनिंग पढ़ना है, 8 घंटे योगा है, बाकी 4 घंटे हमको इंग्लिश पढ़नी है या फिर GA पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस. तो मुझे लगता है दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट. प्लीज़ वेन एवर यू आर मैनेजिंग योर स्केड्यूल, प्लीज़ हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ. I used to work out. I have been working out for 2 years. So gym जाना, even if I was not like growing a lot there, like but मेरा 1 घंटा जो फिक्स था, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, मेरा एक शेड्यूल था कि मुझे उठना है. इवन इन UP विंटर्स आर वेरी एक्सट्रीम. मैं चाहे जितना लो टेम्परेचर हो, मुझे जाना ही जाना है.
ठीक है, गर्मियों में अगर आप 6 बजे उठ सकते हो, सर्दियों में 7 बजे उठोगे, लेकिन जाओ। क्योंकि अगर आप मुझे ऐसा लगता था जिस दिन मैं नहीं जाऊँगी, जिस दिन मैं जिम नहीं जाऊँगी, उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि दिस इज़ मिसिंग, ये नहीं हुआ, और मैं बाकी चीज़ें भी फिर सोचूंगी यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। मैं एक बर्डन रहता है आपके दिमाग पे कि शेड्यूल तो सुबह से ही खराब हो गया। तो मेंटल हेल्थ, चाहे योगा करो आप, मेडिटेशन, मेरे लिए मेडिटेशन नेवर वर्कड। लाइक आई वाज़न्ट द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड जस्ट सिट एंड थिंक। इफ आई सिट साइलेंटली आई विल ओवरथिंक. So I blasted music on my earphones and I just worked out for an hour and I came back. I was so happy the whole day. The whole day you could ask me to study for 12 hours. I'll be happy with it. 12 घंटे बोल दो एक साथ बैठना है, कॉइंस पढ़ना पसंद नहीं है मुझे, मैं पढ़ लूँगी just because I had that time. Time management again is a concept. If you like to study 3 days continuously, you can study. If you want a break, just take the day off. मैं तो घर पे रहती थी, मैं कभी बाहर नहीं गई. तो आई यूज टू अटेंड फैमिली फंक्शंस, आई यूज टू गो एवरीवेयर, आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई यूज टू गो मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीथिंग आई यूज टू डू. क्योंकि ये मेरा टाइम है, मैं 48 घंटे एक साथ पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ लूँगी और फिर 12 घंटे ऑफ ले लूँगी. सिंपल. टाइम मैनेजमेंट पर पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हो. Right. So you balanced between taking time for yourself as well as the preparation. That's a great approach. And also you did mention during the quant, you though you didn't like it, you just took 10 questions at a time, right? So did you have any weekly targets? Because you had to think about your exams and also make your time on how you're going to take about it. So did you have any weekly targets ki okay, these many things I should cover in this week, something like that? So for weekly targets, I would say my only weekly target was I had one day off on Sunday, जब usually classes नहीं होती थी, तो वो time मिलता था जब आप अपनी mistakes पे work कर सकते हो. Sunday is an opportunity. Like लोग बोलते हैं ना यार आज तो संडे है, आज enjoy करेंगे. Even when they are preparing or even when I'm like currently working, so उसके लिए नहीं, Sunday is your time. सो यूज़ इट वाइजली. मुझे ऐसा लगता था वीकली टारगेट्स के लिए संडे इज़ नॉट अ डे. मेरे लिए वीकली टारगेट्स, अगर मंडे से मैंने वेडनेसडे 4 दिन 3 दिन पढ़ाई कर ली है, तो मेरा वीकली टारगेट डे थर्सडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है. तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आउटलुक था, जो एक प्लान था, वो ये था कि मॉक्स में जो मिस्टेक मैं रोज़ करी हूँ, लाइक मेरा अगर स्टेयर बेस्ड पजल्स नहीं हो रहे हैं सही, मुझे कन्फ्यूजन हो ही रहा है स्पेशली, या फिर कोई और ऐसा पजल है जिसमें 3 वेरिएबल दे दिए, फ्लोर नेम भी हटा दिया, चेंज कर दिया और बोल दिया वेरिएबल है, और पोस्ट नेम भी, डेजिग्नेशन भी वेरिएबल है, और उसमें आगे जो भी है कैलकुलेशन या कुछ भी है. तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं उसको टारगेट करती थी वीकली बेसिस पे. देयर वाज नो स्पेसिफिक गोल कि मुझे 1000 क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस करने हैं. मेरा गोल सिर्फ इतना होता था कि मुझे 6 या 7 मॉक्स देने हैं वीकली, और मुझे दिन में 2 घंटे 1 घंटे कॉन्ट्स पढ़ना है, 2 घंटे 1 घंटे रीजनिंग पढ़ना है. मैं इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं करती थी क्योंकि मेरे बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे उसमें. आई ओनली यूज्ड इट फॉर प्रैक्टिस. तो मैं 1 क्लास 2 क्लास ले लेती थी इंग्लिश में. जीए वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ये गलती बहुत लोग करते हैं, जीए नहीं पढ़ते हैं. प्री का प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करते हैं, प्री क्लियर भी हो जाता है, मेंस में डब्बा गोल. मेंस में कुछ नहीं आता क्योंकि जीए इज़ द कोर ऑफ. अगर आपको स्कोर करना है, ईजी मार्क्स चाहिए आपको. ऑल्दो जीए इज़ नॉट ईजी, जीए इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. आप रोज़ अपडेट होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते ईजी है, बट इट्स ईजी वंस यू नो हाउ टू डू इट. आप डेली करंट अफेयर्स करो, वीकली रिविजन करो, एंड देन मंथली टेक अ क्विक टेस्ट ऑफ व्हाट यू नो, ऑफ व्हाट यू डोंट नो. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे G20 सबमिट है, कुछ भी है, तो आप उसको एक लेआउट रखो कि ये करना है, अभी मुझे फाउंडेशन तैयार करना है इसका, ये G20 है, ये मेन चीज़ें हैं, इतने हेड्स आए, इतना ये हुआ, कहाँ पे वेन्यू है. उसके अलावा डिटेल्स आप डेली बेसिस पे करो. आप जब 1 घंटे की क्लास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीए में क्या पढ़ना है. तो दैट वाज माय वीकली गोल, वीकली एंड मंथली एज वेल. So now that we've understood your preparation and approach towards prelims, so let's get to the mains. So what was your approach when it comes to mains like English? I would like to mention one little thing, that mains cannot be prepared in 1 month, 2 month or 3 month. It depends on the fact that कितने ज़्यादा क्लियर आपके बेसिक्स हैं. मेरे लिए
कॉन्ट्स वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी हो जाएगा। तो मैंने अप्रैल से मार्च से मैंने रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर मेन्स। आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन प्री। अर्ली ऑन मेरा फोकस प्री पे नहीं था, मेन्स पर ही था, क्योंकि मुझे पता अगर मैं प्री का, ऑब्वियसली अगर आप एक लेवल हायर पे जाओगे तो आप एक लेवल लोअर पे तो पास हो ही जाओगे। स्पीड वाला फैक्टर है। उसके अलावा जो मेंस में तैयारी है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस्ड है कि कितना ज़्यादा टाइम आप देते हो। टाइम इन द सेंस दिन में कितना टाइम देते हो वो नहीं, कितने ज़्यादा टाइम, कितने महीने आप पहले दे रहे हो। किसी किसी के लिए 1 महीना बहुत होता है मेंस के लिए तैयार करने के लिए, मेरे लिए नहीं था। मुझे मैंने लास्ट ईयर जो मिस्टेक मैंने बताया कि आई वाज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कर लेंगे, मतलब IBPS क्लर्क का प्री मेरा हो गया, तो उसके बाद मुझे याद आया कि अरे यार अब तो मेंस के लिए तैयार करना, अब कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्री में रीजनिंग बहुत डिफरेंट है, लेवल इज़ वेरी लो एंड फॉर मेंस इट्स अ लिटिल हायर। कॉम्प्रहेंशन जो होता है रीजनिंग में क्वेश्चंस का वो बढ़ जाता है। आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। प्री में ऐसा नहीं है, आपने 1 मिनट दिया क्वेश्चन को, हो गया सॉल्व। 2 मिनट दिया। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते पढ़ते, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इवन पजल्स। फॉर मी इट वॉज नॉट दैट ईजी। मुझे लगता था कि पजल्स भी थे। मेरा प्री में रीजनिंग अच्छा हो गया, कॉन्ट्स अच्छा हो गया, सब हो गया। अब मेंस के लिए क्या करोगे? प्री होने के बाद सोचोगे, प्री दे के आ गए, अब शाम को आ गए घर पे, अब सोचें यार अब कल से मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, प्रीज, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम, प्री सेकेंडरी, फर्स्ट इज मेंस। आप अपना लेआउट उसी हिसाब से रखो कि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अभी मेरे को इनफैक्ट इवन इफ यू स्टार्ट प्लानिंग इट लेटर ऑन, अगर आप मई जून में जाके भी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, फोकस करो मेंस पे एंड 1 घंटा 2 घंटा दे दो आप दिन में। इफ यू आर गिविंग 1 hour फॉर प्री मॉक एंड देन यू आर एनालाइजिंग इट फॉर अनदर आवर, हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंस तो अचानक से नहीं हो पाएगा कि आज जाग गए, आज हो गया, नहीं। तो उसके लिए इंग्लिश का, जैसे आपने बोला, इंग्लिश अगेन बेसिक्स की बात है, तो पहले बेसिक्स क्लियर करो आप। वट एवर बुक्स, वट एवर टीचर्स और गाइडेंस यू हैव, वट एवर मॉक्स, इंग्लिश के लिए मॉक्स मुझे लगता है बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं वो मॉक्स, क्योंकि आपको अगर आधा घंटे का टाइम मिल रहा है मॉक में, अगर आप उसको 15 मिनट में कर लोगे, मतलब मुझे 15 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए, बस कर लिए, सबमिट कर दो। बाकी क्वेश्चंस आप एनालाइज करो, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ, मतलब टाइम वेस्ट मत करो वहाँ पे। इंग्लिश एक ऐसा, इट्स वेरी स्पेकुलेटिव, इट्स आपको लगेगा कि आपको आता है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, यू विल कीप थिंकिंग, लेकिन मिस्टेक होती है ऐसे। अगर आप श्योर हो तो मार्क करो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम्स में, तो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। डोंट मेक मिस्टेक्स, डोंट बी स्टूपिड इन द लास्ट मंथ की हो जाएगा, नहीं। मेंस के लिए पहले से तैयारी चालू करो। प्री के लिए तो नेगेटिव मार्किंग वाला एस्पेक्ट मैंने जैसे बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी मतलब 0.25 से आप या गेम में हो, आप गेम से बाहर हो जाओगे। मैनी पीपल आई हर्ड कि यार 0.25 से हुआ है मेरा नहीं हुआ, ऑल्दो आई डिड स्कोर अ लॉट मोर देन दैट, लेकिन मुझे लगता है मेंस के लिए यू विल हैव टू, मेंस के लिए मैंने पर्सनली मॉक्स नहीं दिए इतने ज़्यादा, क्योंकि 2 hours 3 hours ऐसे एक सिटिंग में बैठना मुझसे नहीं हो पाता था। आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन, आधा घंटा क्वेश्चन किया, 5 मिनट घूमाए, फिर 1-2 घंटा पढ़ लिए, फिर घूमाए, तो मेरे लिए मॉक्स देना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। मैंने मॉक्स लास्ट में प्री के बाद ही देने स्टार्ट किए थे, बट मेंस की तैयारी मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, बहुत ही पहले स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई न्यू आई हैड टू डू इट this time. Okay, I really liked your approach on, top down ki if I will prepare for mains, obviously I'll clear prelims, and in this whole approach of your take on, on the mains of logical as well as English was really great. But what about quant? हाँ, quant में मेरा सिर्फ अटेम्प्ट ज़्यादा करने का फोकस नहीं था। प्री में था मेरा, प्री में ईजी होते हैं क्वेश्चंस कंपेयर टू मेंस, ईजी नहीं होते, लेकिन ईजी होते हैं इन द सेंस कि मेंस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अनटिल यू नो हाउ टू डील विद इट। कॉम्प्लिकेशन उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन आपको लगता है कि अगर क्वांट्स डिफ़िकल्ट है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने वही अप्रोच अपनाया कि जितना ज़्यादा फ्रेनेमी वाला अप्रोच की, जितना ज़्यादा वो मुझे तंग करता है, मैं उतना ज़्यादा उसको डील करना सीखूंगी।
दैट वाज माय अप्रोच विद कॉन्ट्स में मैंने DI, मुझे लगता था कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना था कि DI में मैं अर्थमेटिक में सोचती थी कि एक क्वेश्चन करूँगी, मैं टाइम दूंगी, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करती थी, मुझे शॉर्टकट्स बहुत लेटर ऑन मुझे समझ में आए, बट अर्ली ऑन मैं बेसिक्स से पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि बेसिक्स से सॉल्व करने में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम लगता है, तो लेकिन अगर मैं उतना ही टाइम एक DI में दे दूंगी तो DI में क्या होगा, अगर मेरा टेबल बन गया, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे टेबल समझ में आ गई, तो क्वेश्चंस आई विल गो वेरी क्विकली। तो दैट वाज माय अप्रोच। एंड DI के अलावा जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैंने, जैसे मेरे साथ ये हुआ IBPS PO में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। I had 1 month, exactly 1 month to prepare for my SBI PO exam mains. मेरा 5th November को था IBPS PO का means. When I came out of the examination hall, मैं बस रो नहीं रही थी, आंसू नहीं थे मेरी आंखों में, but I was just about to cry. My father was waiting for me. I went out, he asked me and I went. I was like, क्या okay. तब वो लक पे जब आप छोड़ देते हो ना, तो वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि मुझे पता था कि कॉन्ट्स बहुत डिफिकल्ट था, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। अगेन इफ़ आई वॉज प्रिपेयर्ड, अगर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होती इस चीज़ के लिए, तो आई वुड हैव डन इट। फिर मैंने IBPS PO के मेंस के बाद कॉन्ट्स, स्पेशली कॉन्ट्स, इवन रीजनिंग देखने के बाद GA वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। मैंने अच्छा प्रिपेयर किया था GA, आई वाज अपडेटिंग माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस, बट अगेन आई वॉज नॉट रिवाइजिंग इट, आई वॉज नॉट गोइंग थ्रू इट थॉरली कि हाँ एक बार कर लिया करंट अफेयर्स, वीकली कर लिया, बस हो गया। नहीं, जो जैसे अब सबमिट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अब अगर कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ रहा है, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इंडिया में आ रहा है, जा रहा है, कीप डिटेल्स ऑफ इट, कीप अ ब्रीफ नोट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक डायरी रखो, एक नॉर्मल नोटपैड रखो, उसमें नोट कर लो कि ये मुझे पढ़ना है, चेकलिस्ट बना लो, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर GA एज वेल। कॉन्ट्स और रीजनिंग में सब करते हैं, GM में नहीं करते। GM में क्या उठाया, वीडियो कर लिया, नहीं होगा। तो दैट वाज अ चेकलिस्ट आई फॉलोड फॉर मेंस, क्योंकि मेंस में मुझे लगता है कि बूस्ट बहुत जल्दी हो जाता है मार्क्स अगर आप GA कर लेते हो। एंड रीजनिंग और कॉन्ट्स में अगेन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कॉन्ट्स में एक और चीज़ है कि मेक श्योर इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, don't waste your time, read the question first. If you feel like you can do it, do it. If you don't feel like you can do it, तो छोड़ दो उसको, मत करो क्वेश्चन को सॉल्व। हो सकता है कि आगे वो क्या करते हैं कभी कभी कि शुरू में उन्हें 2-3 क्वेश्चंस ईजी रखे, तो आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद एक क्वेश्चन जो दिखने में ईजी लग रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ DI में। मैंने जब IBPS PO में, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या कंटेंट था उस DI में, बट DI थी वो, और मैंने जब उसका टेबल देखा मुझे लगा मैं कर लूँगी, एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग, आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। लेकिन जब क्वेश्चंस देखे तो क्वेश्चंस में दिमाग फिर गया, मेरे 5 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे उसमें। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक, डोंट डू दैट। जस्ट फर्स्टली रीड द क्वेश्चन, टाइम है, आप मतलब 2 से 5 मिनट लेके, अगर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो कॉन्ट्स में, तो 2 मिनट 3 मिनट देख के एक बार पूरे क्वेश्चंस को देख लो, कौन से क्वेश्चंस हैं, आगे इजी क्वेश्चंस तो नहीं है, देख लो। बीच में उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए, आप सॉल्व करने लग गए, आधा घंटा चला गया, नहीं। तो दैट इज व्हाट आई फॉलोड विद कॉन्ट्स, Having a checklist. yeah, That's great. checklist. That's great. So now that we have understood your preparation for mains, right? We would like to know what are the important concepts or topics which is almost covered every year when it comes to SBI PO. What is according to you is important topic or concept that our aspirants should cover? Firstly, for English, I would like to say comprehension पे फोकस करो। अगर आपने एक बार comprehension रीड कर लिया, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब मेरे लिए ईजी था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज रीड कर लोगे, तो 1-2 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली ही आप मार्क कर लोगे। तो ये गलती मत करना, मतलब प्री में आप बाइफरकेट करो टाइम का, कि अगर 20 मिनट्स मिल रहे हैं तो 10 मिनट्स आई विल गिव फॉर अदर्स मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड अदर क्वेश्चंस, फिलर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए, एंड 10 मिनट्स आप दे दो। मैं तो यही करती थी कि मैं पहले सारे इंग्लिश के जितने मिसलेनियस कर लिए, उसके बाद मेरे पास 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितने भी हुए पर एग्ज़ाम, डिपेंडिंग ऑन द एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल, मैंने फिर कॉम्प्रिहेंशन किया, एंड यूजुअली मेरा इंग्लिश जल्दी सॉल्व हो जाता था। 13 मिनट्स और 14 मिनट्स में मेरा सॉल्व हो जाता था। देन आई यूज़ टू गो बैक टू द क्वेश्चंस जिसमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ,
कि मुझे लगा कि नहीं इसमें डाउट है, मैंने मार्क कर दिया है बट सही मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है, तो आई यूज टू गो बैक टू दैट। फिर रीजनिंग में आकर मैं ये करती थी कि रीजनिंग में तो मिसलेनियस, फिर अगेन मिसलेनियस किया। मैं ऐसे करती थी 4-5 मिसलेनियस कर लिया, मुझे लीड मिल गई, 1-2 मिनट में मैंने 6-7 मिसलेनियस जितने हो गए कर लिए। उसके बाद फिर मैंने एक पजल ले लिया, फिर मिसलेनियस कर लिए, फिर पजल ले लिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप मिसलेनियस करने बैठ गए, और कभी कभी वो ये चीज़ करते हैं कि मिसलेनियस ही डिफिकल्ट डाल देते हैं, पजल्स बहुत ईजी हैं। बाकी फिर ये है कि आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसी है। एंड देन कॉन्ट्स में क्या है, क्वेश्चंस आते जाए करते, अर्थमेटिक मत छोड़िए, अर्थमेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप करो। कॉन्सेप्ट्स में अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ भी आप एक बार अगर प्रिपेयर कर लोगे, आप 3 दिन 4 दिन दे दो उसको, उसके सारे क्वेश्चंस ले लो, कर लो। उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन कर लो, बेसिक्स क्लियर, मेंस की प्रिपरेशन कर लो, तो दैट रियली हेल्प्स। कॉन्ट्स में डीआई, जितनी भी डीआई हैं आप सब करो। डीआई में मुझे लगता है कि डीआई में अगेन डीआई को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए कि आप गलत नहीं समझ रहे हो, जो वो समझाना चाह रहे हैं आपको, आप उसको गलत ना लो। बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने डीआई में क्या किया कि एसआई और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सारी चीज़ें डाल दी, और उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपने प्रॉफिट नहीं निकाला, आपने जो टेबल में दिया हुआ है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया। तो रीड इट, गिव टाइम, आधा मिनट 1 मिनट दो, पढ़ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप कर भी दोगे, गलत कर दोगे तो पॉइंट क्या, आप नेगेटिव मार्किंग ही कर रहे हो अपने लिए, सो दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग। Okay, that's great. So now that you have told us important topics or concepts the aspirant should keep in mind, do you refer or do you suggest any books that are available for individual bank subject? So for books personally, I only used books because since आजकल digital सब कुछ available है, books, e-books are available. I didn't really get a lot of books, but one of the books, not really specific to a writer, but previous year questions अगर आप देख रहे हो तो फिर basics clear करना easy हो जाता है। and उसके अलावा reasoning के लिए जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, मैं मतलब मेरे साथ जो सबसे लाइक माई पेरेंट्स थॉट दैट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट माई प्रेपरेशन वॉज दैट आई नेवर वेंट फॉर अ कोचिंग, लाइक फिजिकली मैं ऐसे कहीं पे गई नहीं कोचिंग सेंटर, या मैंने गाइडेंस नहीं लिया था। मैंने सारी पढ़ाई यूट्यूब पे की, एंड 99% ऑफ द कंटेंट दैट आई यूज्ड वाज फ्री, इट वाज फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैंने जो 1% जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मेंस के लिए था, जिसके लिए मैंने मॉक्स नहीं यूज़ किए थे। मेंस के लिए मैंने बेसिकली बुक्स जो भी थी, व्हाट आई यूज टू डू वाज जो भी है टेक्स्ट बुक या जो आप लेना चाहते हो उसका एक सब्सक्रिप्शन आप लो, एंड क्वेश्चंस सॉल्व करो, मॉक सॉल्व करो। उसके अलावा यू डोंट रियली नीड स्पेसिफिक बुक्स की इस टॉपिक के लिए ये बुक है। क्या होगा ना, आप एक बुक लोगे उसमें एक चीज़ अच्छी होगी, 4 चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो सजेस्ट नहीं किया अच्छा बुक। तो मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आजकल आप डिजिटल ऑनलाइन यूट्यूब पे या किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप ई बुक्स ले लो, दैट्स ईजियर एज इन कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा कम टाइम में। फिर बुक्स के लिए वेट भी करना पड़ता है, या अगर आपके लिए ईजीली अवेलेबल हैं कोई अच्छी बुक्स, जैसे हम लोग पहले जब भी जीए की बात होती है सब लोग बोलते हैं लूसेंट की बुक पढ़ लो, तो मेरे लिए डिडंट वर्क। मेरे लिए तो करंट अफेयर्स मैंने यूट्यूब से ही पढ़े, and e-books I used to buy from like some of the YouTube channels, they suggested me books, but मैं बुक्स में मैं नहीं कर पाती थी इन्वेस्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बुक्स आर वेरी बोरिंग फॉर मी, मैं वीडियो देख लूँगी मेरा काम जल्दी हो जाएगा, सो आई कांट रियली सजेस्ट दैट। Right, okay. And now that we've understood the preparation and everything, now it's about post preparation. That is, now that you've studied everything and preparation is done, when you are in like last few days to the exams, that's when you will think about revisions, right? So how do you used to revise and retain concepts? Revision is one of the most important parts. You don't get the time to revise. That is the biggest problem with us. क्योंकि इतने जल्दी एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब 1 महीने में आपके फॉर्म आ गए, आरआरबी के पेपर है, फिर नेक्स्ट मंथ से आपके आईबीपीएस के होने लग जाएंगे क्लर्क, और
पीओ के, उसके बाद फिर एसबीआई के आ जाएंगे। तो रिवीजन पे फोकस इंसान नहीं कर पाता इतना ज़्यादा, क्योंकि टारगेटेड पढ़ाई होने लगती है। फिर जहाँ आप जून में आए, प्रेशर बिल्ड होने लगता है कि यार अब टारगेटेड पढ़ाई करनी है आरआरबी के लिए, क्योंकि आरआरबी में प्री में इंग्लिश नहीं होती है। तो क्या होता है कि आप इंग्लिश नहीं फोकस कर रहे हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिविज़न इंग्लिश के लिए या कॉन्ट्स के लिए कोई रिविज़न नहीं है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपने ये एक टॉपिक पकड़ लिया कि अभी ये क्या आप मतलब डीआई में क्या रिवाइज करोगे, कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। बट इंग्लिश में आप जितना ज़्यादा लाइक यूज टू होगे क्वेश्चंस के, जितना ज़्यादा आप उनको देखते रहोगे, वर्ड्स हैं, वो कैब है, ईजी मार्क्स है। अगर आपको वो कैब अगर आप देखते जा रहे हो डे पर डे, मंथली, अगर आप रिविजन एक डायरी मेंटेन कर लो, वो कैब के जितने वर्ड्स हैं, जितने आपको मीनिंग आती है, जैसे सपोज you want to write words synonymous to friendly, तो make a page for friendly, whatever words are relating to it, just make the notes। अब क्या ना, अगर आप 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप 5वां वर्ड लिखने आओगे, पहले 4 वर्ड आपके रिवाइज हो जाएंगे जब आप लिखने आओगे कि हाँ ये वर्ड्स है। तो दैट इज द काइंड ऑफ रिविजन यू नीड। रिविजन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। रिविजन ऐसे करो कि क्विक, इट शुड बी वेरी क्विक। इट शुडंट बी कि अब मेरा 1 महीना रह गया तो 15 दिन रिविजन, देयर इज नो रिविजन। जीए में रिविजन होता है, तो पहले आप, हाँ, रिविजन जब आप जीए का कर रहे हो, पहले 6 महीने के अगर आप करंट अफेयर्स का रिविजन कर रहे हो, स्टैटिक जीए का भी रिविजन कर रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस के एग्जाम दे रहे हो या बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप पढ़ रहे हो, तो वो आप रिवाइज करते रहो। उसके नोट्स आप पहले ही, जैसे मैंने बोला, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके नोट्स आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एवरीथिंग नहीं कि मैंने यूट्यूब वीडियो देख लिया तो वो मेरे दिमाग में नहीं। नोट्स बनाओ, छोटे नोट्स बनाओ। अगर आप बहुत स्मार्ट हो, अगर आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है, आपको नहीं ज़रूरत है नोट्स की, तो मेक वेरी स्मॉल नोट्स। डोंट मेक वेरी लाइक एलैबोरेट नोट्स जैसे स्कूल में बनाते थे, वैसे मत बनाओ कि हाँ 1 पेज है, उसमें आपने G20 समिट का लिख दिया, 1 पेज में आपने लिख दिया कि ये स्कीम लॉन्च हुई है, इसके बारे में लिख दिया, कोई भी है, सुकन्या समृद्धि है या कोई भी स्कीम है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए आप क्या करो कि उसका रिविजन करते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड जीए एंड रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग और कॉन्ट्स में तो प्रैक्टिस ही काम आती है, उसमें नहीं कर सकते आप रिविजन। Okay, now that you've told about, making notes, right? So what are the few tips that you would like to give our aspirants on effective notes making? Like I said, make it short. This is the one thing that I have suggested to people जिन्होंने preparation के time मुझसे बात की। There were people who actually got inspired to prepare। जब उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने बोला यार प्रिपरेशन क्या करूँ, प्रिपेयर समझ नहीं आता। मैंने बोला कुछ प्रिपेयर मत करो, देयर इज़ नथिंग लाइक प्रिपरेशन। अगर आप उसको एक टास्क बना दोगे तो वो टास्क लगेगा। अगर आपने बोल दिया ना कि नोट्स बनाने हैं, यार नोट्स बनाने हैं, तो फिर वो एक टास्क बन जाएगा। मेक इट फन वाइल यू आर डूइंग, लाइक शॉर्ट नोट्स बना लो आप। कोई भी मतलब एग्जाम्पल मेटाफर्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फनी थिंग्स यू कैन राइट, यू कैन रिलेट टू अ कॉमेडी शो, एनीथिंग व्हाट यू फील लाइक दैट इज़ अ नोट। नोट दैट नोट शुड बी क्लियर, इट शुडंट बी वेग कि हाँ ऐसा था ऐसा। अगर कोई डेट पे हो रहा है तो पर्टिकुलर डेट पे लिखो कि इस दिन ऐसा हुआ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी डिटेल्स आपको पूरे दो, अब सपोज आरबीआई ने कोई चीज़ कोई सर्कुलर निकाला या कोई चीज़ ऐसा हुआ कि उन्होंने नया कोई रूल निकाला है, रेगुलेशन निकाला है, तो उसके लिए आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 or 2 लाइन्स डिस्क्राइबिंग इट। एंड देन फिर मेंस के टाइम पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ सकता है, तो आप रिवाइज कर लो उस पर जाके डायरेक्टली। मेक इट शॉर्ट, मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट इवन फनी। मुझे लगता था कि लाइक मैं जब मेरे घर में ऐसा था कि बहुत फ्रेंडली था, सब कुछ फ्रैंक थे मेरे पेरेंट्स, दे यूज्ड टू हेल्प मी। मेरे पापा, हम लोग न्यूज़ देखते थे साथ में, तो हमेशा ऐसा होता था कि हाँ पापा ने वो चीज़ बोली थी, वो दैट पर्टिकुलर थिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, सो वो नोट कर लिया कि हाँ पापा ने ये फनी वर्ड यूज़ किया था। That's it. That's the way to go. That's nice. So you're just trying to say, like, keeping the notes as simple and short as possible. It will help during the revisions as well. Okay, that's a great approach. So now that we've talked about mains, right? So what about, you always told me throughout the, this thing that mock interview was not something that you give much attention to. So how was your preparation for mock interviews and how did you make up yourself to
take such mock interviews? For interview, I'm an extrovert, so for me talking to people has always come very easy. I can make friends very quickly, so that was not what I was worried about. The main problem I had was the knowledge I was lacking. Since banking awareness and the topics, economics, I've not studied economics, not in school and not in college, so that was one thing. जितनी भी चीज़ें थी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ उस चीज़ को लेके, तो मैंने फोकस किया. आफ्टर माई मेन्स गॉट क्लियर्ड, ऑफ कोर्स आई वाज वेरी शॉक्ड जब रिजल्ट आया, ऑल्दो आई वाज होपिंग कि क्लियर हो, क्योंकि IBPS PO के बाद आई वाज स्टडिंग 16 आवर्स अ डे. 5 नवंबर को मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था और SBI PO का मेरा 5 दिसंबर को था. दैट 1 month माई पेरेंट्स डिडंट सी मी मच, माई फ्रेंड्स डिडंट सी मी. I didn't have many friends actually when I was preparing for the exams. I have very few friends. So मेरे लिए तो वो प्लस पॉइंट था. नहीं कोई फ़ोन करेगा, नहीं कोई टेक्स्ट करेगा, तो I can focus more on my studies. And my parents, they helped me a lot. वहीं पे अगर मैं बोल दूँगी ना मम्मी पानी, तो या भाई है तो पानी भी वहीं आ जाता था. I was very privileged like that. My parents always helped me a lot. Like even though they had their whole life, their personal things to go, but they made sure कि my needs were met. तो मैं लकी हूँ, मैं सब लोगों को ये चीज़ नहीं मिलती. Everybody doesn't have the luxury to say this coming on this platform, and I'm very lucky to say that. तो मेरे लिए ये important था. फिर इंटरव्यू के टाइम पे था, I used to practice with my stuff with my parents. I used to say पापा ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. Since they are working in government organizations, they used to give me tips. And तब I actually went for guidance for interview to my grandfather as well. He's very knowledgeable like that. And to other people, like to some mentors online, I contacted them on YouTube channels as well, and they helped me a lot. But the biggest help was knowledge. If you're lacking in knowledge, you lack in confidence. Confidence comes from within only when you know your stuff, only when you know that you have the right information about something. If somebody asks you, do you know about this scheme, this government scheme, how will you be able to tell? You won't be able to tell. अगर नहीं बता पाओगे तो वहीं से फंबल करना चालू करोगे आप. इंटरव्यू में people have told me इंटरव्यू तब स्टार्ट होता है जब आप एंटर करते हो रूम में. इट्स नॉट लाइक जब आप बैठ जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, नहीं. मेरे साथ ऐसा हुआ, आई स्कोर्ड गुड इन इंटरव्यू. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. मेरे को मेंस के मार्क्स के लिए थोड़ा सा था डाउट, क्योंकि शॉर्टलिस्ट आ जाती है लेकिन मार्क्स नहीं पता थे हम लोगों को. मार्क्स का ऐसा था, मुझे पता था कि अगर मार्क्स नहीं अच्छा है मेंस में तो इंटरव्यू का क्या पॉइंट है, चाहे मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर लूँ, अल्टीमेटली मेंस के मार्क्स तो मैटर करेंगे ही ना. तो मुझे सबसे ज़्यादा डर उसका था. ऑल्दो आई वाज होपिंग कि हाँ मतलब ऐसा ना हो कि कट ऑफ से बिल्कुल 1 या 2 नंबर ज़्यादा है, नहीं थोड़े ज़्यादा होंगे तो मुझे थोड़ा सा लीड मिलेगा. एंड इंटरव्यू वेंट वेल. इंटरव्यू के लिए अगेन करंट अफेयर्स यू शुड नो स्टैटिक GA, स्टैटिक स्टफ. दे आस्क यू अबाउट SBI. लाइक मेरा SBI में था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि SBI के बारे में आपको क्या नॉलेज है. उन्होंने मुझसे पूछा हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स, हाउ मेनी करंटली पीपल आर वर्किंग इन SBI. They asked me simple questions. Questions were not that difficult. They asked me what is bank rate. So bank rate, if you're a banking student, if you are an aspirant, you should know what is bank rate. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैंक रेट क्या है ये याद कर लेते हैं लेकिन डेफिनेशन याद नहीं करते. दे डोंट नीड टू नो द बुकिश डेफिनेशन. उनको पता है, वो चेयरमैन है, वो बैठे हुए हैं कमिटी के, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हें पता है. लेकिन दे वांट टू नो कि द कॉन्फिडेंस यू हैव, हाउ यू डील विद पीपल. सो नॉलेज एंड टू बी वर्किंग इन बैंकिंग इज अ वेरी डायनामिक career. It's a very dynamic sector. If you don't have the knowledge, if you don't know what is going on, you won't get the opportunities that other people will get. Right. So that mindset you should have. That interview will be prepared. If you're preparing for banking awareness, static and current, it will be. But हाँ, एक बार अगर रिजल्ट आ गया तो बाकी सब एग्जाम, जैसे अगर आपके और किसी एग्जाम्स के मेंस हैं तो वो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहो, लेकिन फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करो. जितना भी टाइम मिले. Okay, and now talking about the main interview, right? So with the panelists, like what language was the interview in? Was it like English, or you were able to speak Hindi as well with them? How was it?
So I had my since I'm from UP, I had my interview in Lucknow. So when I went to the room, chairman asked me, "Are you comfortable in Hindi or English?" मैंने बोला कि sir, I'm comfortable in both languages, but I would like to continue in English. The only reason being I could have opted for Hindi. मुझे हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी आती थी. मैं हिंदी क्यों नहीं opt कर रही थी? Because if they asked me something specific, like I said bank rate, then because I have known the answers in English from earlier, so मेरे लिए इंग्लिश में ही आंसर्स आ रहे थे. मतलब मुझे पीछे से ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश में आंसर किया. बट देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. अगर आपके चेयरमैन है या और भी लोग होते हैं जो भी इंटरव्यू में जो पैनल जो बैठे होते हैं लोग, वो अगर आपसे बोल देंगे कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकते हो, तो फील कंफर्टेबल. ऐसा नहीं हो कि अगर आपने बोल दिया कि सर आई एम इन इंग्लिश, लेकिन आप फंबल कर रहे हो और फिर आप आते हुए आंसर्स आप नहीं बोल पा रहे हो. दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट. अगर आप बोल रहे हो हिंदी, यू आर गुड इन इंग्लिश, लेकिन अगर आपने बोल दिया हिंदी, फिर उन्होंने आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछी, अब आप सोचने बैठ गए. ऑल्दो अगर आप बोलोगे कि सर आई नीड टाइम टू रिकलेक्ट, दे विल गिव यू टाइम. Okay. बट डोंट वेस्ट देयर टाइम. दे आर इंपॉर्टेंट Understood. पीपल, सो डोंट वेस्ट देयर टाइम. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, गो विद इंग्लिश. अगर हिंदी इंग्लिश में बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलोगे तो चलेगा. मेरे साथ ऐसा था. Okay. बाकी लोकल लैंग्वेजेस के लिए मैं नहीं कह सकती. Understood, understood. So initially itself you have to set up the environment in such a way that language shouldn't be a barrier. Okay, that's nice, that's nice. So, you know, how was the interview questions? You already mentioned few of the interview questions that they asked about the number of people and everything. So what were other questions that was asked during the interview by the panelists? So for my interview questions, some of the questions were personal. Since I've my graduation in arts, so there was not much they could ask from that. Sociology as a subject, the only thing I wanted to convey was sociology as a subject. I'm good with people, so that was it. And one of the questions that really struck with me was I told them about my life. So they asked me, how do you think you will do in banking? How is banking relevant to you as a person? You should know the answer to that, because if you don't know the answer, it's a game changer. Why do you want to come to banking is an important question. You should be prepared. I told them my personal reasons why I wanted to come to banking, and in spite of the fact that I was a little personal, they let me be okay with it. Okay, it was a personal thing, it's okay, but try to be professional also. If you are answering them, I want to come to banking, don't say the perks and everything is good. No, don't say that. Say something. It might be constructive, it might be a little bookish, but say something that is acceptable. So these are one of the few questions, and other questions were very basic. Bank rate and number of employees, this kind of stuff. Okay. If I may ask, what are the, you know, few questions in the interview that you were not able to crack, and how did you approach those kind of questions where you didn't know what to answer? One of the questions I was very confused with were whenever they asked me for a number, like give me the number of employees that work in SBI. I don't have a good memory. Like I really forget stuff. I forget dates. So other stuff, like they asked me when was it established, that I could tell. But whenever it comes to statistics, like tell me what is the demographic, I wouldn't answer them correctly. So I only asked, "Sir, I'm sorry, I can't recollect it right now. I'll have to study about it." So they are not there to see if I have the knowledge about it. They just want to see if I answer it confidently. Right. So that was it about the interview. That's great. So now, knowing your preparation on prelims, taking your mains and then interviews, in overall this journey, how did you know that you were right on track when it comes to any of these, and if you are actually improving every day on this? You never know. That, like, it's life. It's a life part. It's a part of your life. So you never know if you're going on track. There's many ways to be on track. Like I said, I didn't have a schedule. I didn't have a list of what to do, what not to do. Weekly, I used to do my revisions and stuff. That was it. But when I knew that I was on track was when I went to the exam halls.
one of the biggest thing while you're an aspirant is you never know what is coming next. Sometimes they change the schedule of the exams. Maybe it will be earlier, maybe it will be later on. Sometimes they change the pattern of questions. Sometimes they totally obliterate the kind of questions they are going to ask. So that is the one thing you have to understand, that being on track means just do your due diligence, do your work, do your studies properly in the basic, and then when you are going forward, you will be compensated. Time will be compensated, and being on track is the only thing that will help you in the interview. Like when you reach to the interview, you will know that I was on track, I was right, I was doing it correctly. That was my thing. Okay. So last question that I would like to ask is, overall, in this journey, every day is not the same day, right? Some day your motivation may go down due to some reasons. So overall, what kept you motivated to clear or crack this exam? I am a very emotional person, so for me, even like the littlest thing would make me really mad. Like I would get, like if I don't get 3 or 4 questions right in a row, if I'm getting back on back, if I'm getting questions wrong, it would irritate me. It would, I was frustrated because when you're giving your 100% and then also the results are not according to that, so you feel like, what am I doing wrong? That was the thing. So I always felt like I have to give my best, and giving your best is the only thing you can do in the end. Right. Yeah. Right. That's great. Now that we've known a lot of things about you on this journey, right? So I would want to take a very small rapid fire, which covers some of your personal questions as well. Because now that we already know you and your preparation, we would want to know a little more about your personal life. So are you ready for it? Yeah. And it's a rapid fire. Yeah, sure. Your first question is, if you had a chance to change your name, what would your new name be and why would you choose that? My name, I like my name a lot, so I would probably not change it. But I would take a name from H. My father is, he has an initial H, so something with H. Okay. What is the most important object you own? The most important object, I don't believe that there's something more, like anything is more important than the people I have in my life. So no objects. No materialistic. No materialistic Okay, that's great. So what movie has everyone else seen but you haven't? Oh, there are many movies that I haven't seen. Like the last movie I watched was Lapata Ladies, I think. Okay. Other than that, I don't watch movies. Okay, that's nice. So if you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? Help the elderly. Like people always help the poor, they go to orphanages, but that is the one place I think people should go to. Help the elderly, help the senior citizens. Nice, good approach. And one last question we have for you today. What's something you've tried that you will never ever try again? Something I've tried. That you'll never try again. I don't remember the name, but it was one of the coffees I had at a fancy place. Oh my god, it was so bad. Okay, Yeah. so you'll never. No, go I'm back. not going to have that. Was it in Bangalore? No, it wasn't in Bangalore. Yeah, that was a quick rapid fire. Hope you enjoyed it. Yeah, I definitely did. Okay, and thank you for coming with us today and sharing your story. And I'm damn sure a lot of aspirants will be taking a lot of insights of your journey. And I'm sure whatever you have mentioned that you lagged in, I'm sure they don't lag in, because everybody's failure should be someone else's learning, right? Yeah, definitely. So thank you for joining us today. We have a very small hamper for you. Here's the hamper for you. Okay, thank you. Thank you for being a part of this episode. So before sending you away, we would want to know which topper you know in your batch, because you were discussing about your batchmates. So which topper who has cracked this exam should be part of our episodes, who might really help us in his or her story, right? So who is that one topper that you would like to tag for the next episode? I can't take one name. They'll all beat me when I go back. But one of my mind, I will think of Richa. There's Richa and
Dilshad, in fact, I think she's nice. Ranjeet, I have. So Okay, thanks for tagging them. So we'll soon reach out to them for our next episode. So before going and before wrapping this up, so what's the last message that you would like to give to all our aspirants? So the only thing I would like to say is be focused and don't waste your time. Don't waste your time planning things. Do it. If you want to do it, then just take a step, move forward. There's no going back once you start preparing. So that is the only thing. So this was Ishita's story, who has cracked her SBI PO exam. So guys, stay tuned to all the aspirants. We have much more inspirational stories coming up. So stay tuned. Let's crack it.